a motivational speaker who has motivated more than 5,000 students, founder and CEO of AS Tutorials, Professor Amit Sharma. So, first of all, good afternoon everyone. Once again, good afternoon everyone. Good afternoon everyone. Come on, energy. We need energy. Energy is required for everything. For that, in the beginning, to make us active because it's afternoon. ठीक है, मतलब होता है दोपहर में खाना खाने के बाद नींद आती है and you feel very low. So we'll play again a mind game. Okay, everyone has to participate, and for that you have to just keep focusing what I'm saying. मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो ध्यान से समझिए और गेम के रूल्स समझिए और फिर गेम खेलते हैं. Next 5 minutes we'll play a game so that we are active and into the session. So, if I say you all sit, then you have to stand up. हाँ, ध्यान से क्या बोला? If I say sit, you have to stand. And when I say stand up, you have to sit. It is reverse mechanism. I hope you understood. Yes, that's great. I hope you all are ready for it. And it is totally a mind game because whatever we have till day done, someone told us to sit, we sit. Someone told us to stand up, we stand up. So it exactly reverse, and वो reverse होगा इसका मतलब क्या है? You have not got habit of it. Your body is habitual only what we spoke before. So देखते हैं कितने लोग सही से कर पाते हैं. And for that थोड़ा सा कष्ट होगा. मतलब बैक बैग्स है वो सब थोड़ा सा साइड में रखना पड़ेगा. Keep aside and then we'll like start. And one more thing I want from you all. You need to smile during entire session. एक चीज चाहिए करो, please. It's my request to you all that you should smile during entire session. और ऐसा नहीं है कि कोई रीजन के लिए स्माइल करना है. ऐसे स्माइल करने का क्या जरूरी थोड़ी कोई रीजन होना चाहिए. याद रखना, आपको स्माइल करने के लिए कोई रीजन की जरूरत नहीं होनी चाहिए कभी भी. If there is a reason to smile, you are going wrong. याद रखना कभी. Whenever I feel low, मैं क्या करता हूँ? I sit or stand like this, and I take a deep breath. I have a huge smile on my face, and I just release. I do like this. कभी भी मैं ऐसे करता हूँ, so I feel very relaxed. And that is what we are going to learn today. How to basically avoid stress. Basically यहाँ पे stress management लिखा है, but I don't call it as stress management. I call it as stress avoidance. ठीक है? मैंने लास्ट सेशन में भी इसके बारे में बात किया, कुछ स्टूडेंट्स होंगे उसमें. I call it as stress avoidance. So we'll start with the game now. So if I say you stand up, you have to sit. Reflex action, आपका भी reflex action बहुत काम कर रहा है. ऐसे काम दिमाग में आँख से काम कर रहा है. ठीक है? Everyone ready? Yes. Ready? Yes. आवाज नहीं आई. Ready? Yes. Yes, that's the spirit. And smile, हाँ? I need smile. बीच में अगर किसी के भी चेहरा स्माइल से गया तो मैं नोटिस करूँगा because I have very sharp eyes, because I have 4 eyes. तो कोने में बैठा रहेगा तो मालूम पड़ेगा. So you have to smile. मैं जिधर भी ऐसा, और मेरे अंदर ऐसा है कि किसी को मैं थोड़ा भी डाउन देखता हूँ, स्माइल देखता हूँ, उधर फटाक से मेरा फोकस चला जाता है.
many reasons are there to be stressed, but you should have no reason to smile. कभी भी smile करना है. Let's start the game. We are about to start. So we are ready. If I say stand, you have to sit. And when I say sit, you have to. Okay. Let's start now. Count of 1, 2, 3. We'll start. 1, 2, 3. Sit. Sit. Stand. Sit. Stand. टाइम लगा. दूसरे को देखते हैं तभी. अरे क्या बोला? ओके ओके. Sit. Sit. Stand. Sit. Stand. Sit. Sit. So actually this is what basically we have learned. जो हमने अभी तक लर्न किया, दिमाग में वही सब चीजें चलती है. हमारी बॉडी उसके हिसाब से रिएक्ट करती है. So stand. ठीक है, सब देख देख के कर रहे हैं. Fine. होता है, मतलब हमारे जो माइंड है उसको जो आदत है वही रहेगी. But we can change it. Now we are to the topic, and this is stress avoidance basically. And to get something out of this, what I need is your 100% attention. That is the most important thing. और मैं लिख देता हूँ, अगर आपने इसको 100% attendance यानी presence of mind के साथ किया, so definitely you will reduce your stress to the extent level. मतलब आप सोच नहीं सकते कि सर ने क्या बताया, और अगर हमने वो किया, so definitely you will reduce your stress, because it is my personal experience. Nothing comes without experience. हम बुक से भी पढ़ते हैं, लेकिन जब तक वो चीज हमारे पर बीतती नहीं है तब तक हमको कुछ नहीं पता चलता. So I have been in stress for many times, but we have to avoid it. Rather than managing, we have to avoid. So जब मैं बात करता हूँ stress management, I call this stress avoidance. अगर मैं बोलता हूँ I have to avoid stress, and as I spoke in the previous session, इसके पहले बैच जो था उसमें मैंने बोला था the same thing I am going to say you कि management we do for precious things. आप कौन सी चीज को मैनेज करते हो जो आपके लिए प्रीशियस होती है, which is precious for you. Money is precious for you. You manage it. Fine, I am fine with you. कि सर मनी मैनेज करना पड़ता है बिकॉज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, प्रीशियस है. टाइम हम मैनेज करते हैं, अगेन इट इज प्रीशियस फॉर अस, इसलिए मैनेज करते हैं. फैमिली, रिलेशंस, फ्रेंड्स, everything is very very precious, so we manage it. Correct now? What you think about what things we should manage, which are precious or not precious, which thing you should manage? Correct है कि गलत है? What do you think? Correct or wrong? अरे you have to speak and you have to smile on your face. ऐसा नहीं चलेगा यार. क्या है ये? You give me energy. अगर आप ऐसा बैठे ना चलेगा, ना चाहो नहीं चलेगा ऐसा. You have to be responsive. अगर आप responsive नहीं होंगे, I will not get energy. आपको क्या लगता है, मैं ये यहाँ पे बोलने की एनर्जी मेरे अंदर से आती है? नहीं नहीं, आप बैठे हो, आप मुझे एनर्जी देते हो. You are a source of energy, so you should have a smile on your face and you should speak when I just talk. मैं कुछ पूछ रहा हूँ, आंसर आना चाहिए. So ऐसा नहीं चाहिए. If I am asking precious or not precious, not. कुछ खा के आया क्या? खाया होगा, ब्रेक हो गया. So is stress precious or not? What is the meaning of precious? Precious समझता है. अपने लिए वो स्ट्रेस को संभालना जरूरी है कि मतलब स्ट्रेस
अपने बॉडी मतलब अपने बॉडी का पार्ट, या फिर हम बोलेंगे इंपॉर्टेंट है क्या हमारे लिए, स्ट्रेस इंपॉर्टेंट है क्या, स्ट्रेस को महत्व देना चाहिए क्या, नेवर। सो इसलिए मैं बोलता हूं स्ट्रेस मैनेजमेंट से अच्छा वर्ड है स्ट्रेस अवॉइडेंस। व्हाई टू मैनेज? इट इज नॉट एट ऑल प्रीशियस। So if it is not precious, why to manage stress? Everywhere I see stress management, stress management. As soon as you say stress management, you are giving importance to stress. आप importance दे रहे हो उसको, और जिस चीज को importance दोगे वो आपकी लाइफ में आएगी आएगी। What do you say? अगर आप कोई चीज को लाइफ में importance दोगे वो आपकी लाइफ में आएगी कि नहीं आएगी? Definitely आएगी। So what I need to say, don't manage, just avoid it. Let go it. Avoid करो, जाने दो। Importance दो ही मत। So it is all about stress avoidance. We'll talk about stress avoidance. So now सबसे पहले हम लोग समझेंगे ये, I am very clear about it कि stress manage नहीं करना है हमको क्या करना है उसको avoid. We need to avoid it. And certain things I will be talking upon and guiding you all. If you follow it, definitely it is going to be avoided. Avoid with that. Now, first of all, we'll understand the meaning of stress. Many a times we misunderstand the meaning of stress. मतलब अरे समझते ना स्ट्रेस क्या है? क्या होता है? आप ऐसे बैठे हो, कुछ सोच रहे हो, और आपका हार्ट बीट फास्ट होता है, that is stress. You don't realize the heart beat fast होगा unless and until you get ill. Because अभी मैडम ने कुछ बोला कि worldwide people are dealing with stress and they don't come to know until they go to doctor or they are ill. पता ही नहीं रहता हमारा हार्ट बीट कब तेज हो गया कब कम हो गया. We don't know. Stress is a mechanism of the body to deal with fear. कोई चीज का डर अगर आपके अंदर है उससे आपको डील करना है तो स्ट्रेस एक मैकेनिज्म। तो आप अगर अपने आप में फियर आने नहीं दोगे तो स्ट्रेस होगा ही। आपने बहुत बार ऑनलाइन या आजकल सब कुछ एग्जांपल्स देते हैं। यू नो अबाउट द स्टोरी ऑफ अ ग्लास ऑफ वाटर। वो ग्लास में वाटर लेते हैं, आधा भरते हैं, पूछते हैं इसमें क्या दिख रहा है आपको। सो सम सेज कि हाफ फुल, हाफ एम्प्टी, ऐसा सब बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रेस के लिए एक्सपेरिमेंट है उसका वेट कुछ नहीं है, ग्लास पर अगर आप यहाँ पे भरोगे कुछ नहीं है, बट इफ यू होल्ड फॉर लॉन्गर टाइम द हैंड विल पेन। आपका हाथ क्या होगा, दुखने लगेगा। उसका वेट कितना होगा, 200 ग्राम्स और 300 ग्राम मैक्सिमम। बट उसको कंटिन्यूअसली होल्ड करने की वजह से आपका हैंड क्या हो जाएगा। The same thing is stress. What does it mean is आप कोई भी एक थिंग को बार बार कंटिन्यूअसली सोचोगे फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यू गेट स्ट्रेस। एक ही चीज को आप सोचोगे। The thing can be good or bad for you. मतलब कोई अच्छी चीज है, मतलब it is a good news for you. If you think again and again and again and again for a long period of time, stress will be there. अगर आप कोई खराब चीज है आपके लिए, कोई फियर वाली चीज है, उसको भी बार बार सोचोगे, कंटिन्यूअस सोचोगे, again there will be stress. So what I mean to say is prolonged thinking or overthinking about a particular thing again and again creates stress. मतलब आपको करना क्या है स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए? वो जो एक सोच है आपके माइंड में जो बार बार घूम रही है, उसको बार बार घूमने नहीं, बस खत्म। इतनी सी चीज करनी होती है। And for that you know what you need to do? You need to train your mind, because everything is in mind, right? That thought, कहाँ पे वो thought? माइंड में। तो आपको माइंड को ऐसा बनाना पड़ेगा कि कोई थॉट यहाँ पे रुक ही नहीं पाए। अरे ready what I'm telling you? Everyone, आपको अपने माइंड को ऐसा
ट्रेन करना है कि आपके माइंड में वो थॉट रुक ही नहीं पाए, कोई भी थॉट हो। हाँ, फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, दैट इज नीड टू बी अंडरस्टैंड नाउ। हाँ, अभी वो समझना। अभी आपको ये समझा स्ट्रेस कैसे होता है हमको, आपका मतलब लाइफ में अभी तक ऑब्जर्व भी किया होगा कि क्या होता है। हम कोई भी एक चीज को बार बार कंटिन्यूअसली सोचते हैं तो भी स्ट्रेस होता है, अदरवाइज नहीं होता। अभी जैसे हमको बोला जाता है कि फिर स्ट्रेस हो रहा है, गो फॉर सम आउटिंग। क्यों ऐसा बोलते हैं? बिकॉज आप जो काम कर रहे हो वो आप बार बार सोच रहे हो, उसको ना सोचो, इसके लिए आपको बोला जाता है बाहर जाके गो आउटिंग। आप सब फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो। व्हाट यू डू व्हाइल एंजॉयिंग विद फ्रेंड्स, जिस वजह से आपको टेंशन हो रहा था, स्ट्रेस हो रहा था, वो थॉट नहीं आएगी दिमाग में, वो दूसरी चीजें चलेंगी। इसके लिए आप एकदम रिलैक्स फील करो। You go for movie. What happens when you see the movie? Do you remember anything else? That is why the stress got reduced. मतलब what is the mechanism basically? Is just overcoming your thinking process. बस इतना ही करना है, कुछ नहीं यार। लेकिन ये जो इतना ही करना है, इसके लिए it requires hours of practice, mind making and training your mind to think. इतना अगर आप करोगे, definitely you can easily avoid the stress. आराम से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। बस आपको अपने माइंड को क्या करना है, ट्रेन करना। When I talk about some mind को ट्रेन करना है मतलब क्या? Many of you will be wondering क्या माइंड को ऐसे ट्रेन करेगा? How we can train the mind? And you know, one of my friend, it is a story of my friend who was in stress due to his relations. वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशन। स्ट्रेस तो स्ट्रेस है, कोई भी चीज का। फोन नहीं आ रहा है, स्ट्रेस। क्यों फोन नहीं आ रहा? कंटिन्यूअसली हम वही सोचते रहते हैं। सो स्ट्रेस होने के बाद होता क्या है? यू गो इनटू डिप्रेशन। व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड आउट वेरी मच, एक लेवल होता है बॉडी का स्ट्रेस एक्सेप्ट करने का, उसके बाद अगर और लेवल चले जाता है ऊपर स्ट्रेस का, यू गो इनटू डिप्रेशन। स्टार्टिंग स्टेज ऑफ डिप्रेशन, फिर और then you get some illness and everything, बाद में पता चलता है। लेकिन ये सब होने नहीं देना आपको। हमको क्या करना है उसके लिए? we have to train our mind. so how to do that? क्या मैं जो बताऊंगा वो आप लोग करोगे? that is most important. because मैं बता के चला जाऊंगा, अरे आए थे सर बोल के गए, क्या है? अगर आप करोगे तो कोई फायदा नहीं, तो कुछ मतलब नहीं। अगर आपने किया, definitely the results will be there, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत लगेगी और खुद के ऊपर आई कैन से सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेल्फ कंट्रोल का मतलब आपको नहीं मन नहीं करेगा वो चीज करने का, लेकिन फिर भी वो करना। देयर आर मेनी थिंग्स यू कैन डू टू अवॉइड स्ट्रेस। एक ही चीज है, मतलब पूरे स्ट्रेस अवॉइडेंस का एक ही जो कोर पॉइंट है कि एक ही थॉट को आपके माइंड में मत आने दो बार बार। बस अगर आप इतना करते हो, यू विल नेवर बी इन स्ट्रेस। कभी भी स्ट्रेस में नहीं होगा, 110%। सो बेसिकली स्ट्रेस इज मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल रिएक्शंस। अभी आप बैठे हो, आप कुछ सोचो, कंटिन्यूअसली प्रोलॉन्ग थिंकिंग। अभी आपका अचानक से कोई फ्रेंड आ जाता है, उसने कुछ जोक क्रैक किया, आप हंसने लगते हैं। वो थॉट चले जाता है कि नहीं चले जाता है? आई एम टॉकिंग अबाउट इट, ऑल दिस थिंग्स आर वेरी प्रैक्टिकल। ये सब चीज प्रैक्टिकल है। आपके माइंड से थॉट चले जाते हैं एंड यू फील हैप्पी। आज शाम को मूवी जाना है, यू फील वेरी एक्साइटेड। अरे आपको मूवी जाएंगे, उसके मूवी में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वही सब सोचते रहते। और स्ट्रेस results
into fast aging. Remember that. क्या बोला? Stress results in fast aging. Aging fast होता है अगर आप स्ट्रेस में रहोगे. So we need to avoid. तो स्ट्रेस अवॉइड करने के लिए whenever you are in a stressful situation, हमारा जो बॉडी है वो रिस्पॉन्स करता है either in fight और फ्लाइट रिस्पॉन्स. यानी हमारी बॉडी अगर रिएक्ट करेगी स्ट्रेस को तो वो स्ट्रेस या तो फाइट और फ्लाइट मोड में आएगी. फाइट मोड का मतलब होता है आप रिएक्ट करोगे. क्या करोगे? रिएक्ट. यू विल रिएक्ट टू दैट सिचुएशन. समवन इज इरिटेटिंग यू तो आप रिएक्ट करते हो. A lion comes in front of you. React, भागोगे. Some vehicle comes in front of you, you will react. And जब भी ऐसा कुछ होता है तो हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाता है. और जब भी आपका हार्ट बीट फास्ट है ना मतलब यू आर इन स्ट्रेस. यू हैव टू पहली बात ना हमको पता चलना चाहिए कि हम स्ट्रेस में हैं कि नहीं, फिर अवॉइड करेंगे ना. स्ट्रेस में नहीं है फिर भी अवॉइड करें ऐसा थोड़ी होता है. So what you need to understand, पहले आपको पता चलना चाहिए है कि नहीं स्ट्रेस में. कंटिन्यू सोच रहे हो हार्ट बीट फास्ट हो रहा है या नॉर्मल नहीं लग रहा है, लो फील हो रहा है, तो ये सब आर साइंस ऑफ स्ट्रेस. ये सब साइन. तो फ्लाइट और फाइट मोड दोनों भी एक रिस्पॉन्स है. फाइट मोड का मतलब ये होता है कि आप रिएक्ट करो और फ्लाइट मोड का मतलब होता है आप कुछ रिएक्ट नहीं करो. यू विल बी सिटिंग डाउन. So both are stress. लेकिन जो फर्स्ट वाला रिएक्शन मोड वाला जो स्ट्रेस है वो जैसे इवेंट खत्म होगा ना वो चला जाएगा. यानी as soon as the vehicle passes you, मतलब आपको डर लग रहा था vehicle हिट करेगा, वो साइड से चला जाता है. 2 मिनट के बाद यू आर ओके, फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन आप जो सोचते हो, योर थिंकिंग gives you more stress. Overthinking gives you more stress. सबसे बड़ा स्ट्रेस है ओवरथिंकिंग का. जो फिजिकल सामने चीजें होती है वो तो तुरंत 2 मिनट में चली जाती है. 2, 5 मिनट, 10 मिनट. किसी से झगड़ा हुआ सपोज तो क्या होगा? जितनी देर झगड़ा होगा उसके आधे घंटे तक आपको क्या रहेगा? थोड़ा बहुत टेंशन रहेगा. लेकिन जब आप खुद की थिंकिंग से, कोई भी आपके आजू-बाजू नहीं, लेकिन खुद की सोच से सोच के आप ओवरथिंक करके अपने आप को स्टैग्नेट कर दोगे और स्ट्रेस में डाल दोगे तो वो ज्यादा खतरनाक है. इट इज मोर डेंजरस. सो व्हाट यू नीड टू डू इज लाइक आपको क्या करना है, बेसिकली यू नीड टू लर्न द टेक्निक हाउ टू स्विच योर थिंकिंग. क्या बोला? स्विच. आपको थिंकिंग क्या करना चाहिए? मैंने क्या बोला? एक ही चीज सोचने की वजह से आप क्या करते हो? स्ट्रेस में आते हो. तो एक ही चीज क्यों सोचना है? स्विच करो ना उसको. फटाक से अगर आप स्विच करोगे तो क्या होगा? यू विल बी इनटू अनदर थिंकिंग एंड यू विल नॉट बी इन एनी स्ट्रेस. अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो चीजें सोचते रहते हैं और इंप्लीमेंट नहीं करते? बिल्कुल सुन पापा नहीं है ना, मैं भी ऐसे. आप वी आर सेम. आप बोलो ना मैं भी ऐसे हूं. यू कैन बी फ्री. उल्टा बिंदास सोचते हो लेकिन करते नहीं. बिंदास. अरे कोई नहीं, आज वाला हाथ उठाएगा तो मैं उठाऊंगा. ऐसा उठाऊंगी ऐसा नहीं ना. ओके, बहुत सारे लोग. तो अगर ऐसा है तो आप एक चीज करना शुरू करो. जो आपने सोचा है ना उसको इमीडिएटली इंप्लीमेंट करना शुरू करो. स्ट्रेस विल बी जीरो. कैसे सर? जब आप सोचते हो आप यहाँ पे कंटिन्यूअस एक ही सोच रहे हो एंड इफ यू स्टार्ट डूइंग वो सोचना बंद हो जाता है. और आप करते क्यों नहीं हो पता है? आप सोचते हो मेरे से परफेक्ट होगा नहीं,
क्या होगा, आउटकम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा। मतलब आपने कुछ सोचा मुझे ये करना है, तो ये गलत हो तो क्या होगा, मतलब यू गो इनटू ओवरथिंक। आप क्या करो, स्ट्रेट अवे यू स्टार्ट एक्शन। अगर आपने एक्शन स्टार्ट किया ना, आप सोचना बंद कर दो। देयर कैन बी, अच्छा मुझे बताइए, दो चीजों में से एक ही चीज एक टाइम पे हो सकती है, या तो सोचना या तो करना। इफ यू स्टार्ट डूइंग अ वर्क, यू स्टॉप थिंकिंग। आप सोचना बंद कर देते हो अगर आप वर्क करना शुरू कर दो। सो एक्चुअली जो भी हम जितनी भी चीजें स्ट्रेस में होते हैं वो सब हमारी वजह से होती है। अच्छा, कितने लोग ऐसा लगता है कि दूसरे की वजह से हम स्ट्रेस में होते हैं? How many of you think like that? There are many misconceptions, वो क्लियर होंगे अभी। कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि दूसरे की वजह से हम स्ट्रेस में आ गए? 1 2 3 4 5। अच्छा, और कितने लोग सोचते हैं हम खुद की वजह से स्ट्रेस में? कोई नहीं सोचता। अरे बाप रे, खुद की वजह से आप स्ट्रेस में हो? मतलब यू आर द रीजन ऑफ स्ट्रेस। आप कैसे रीजन हो सकते हो खुद के स्ट्रेस के? अरे बट हाउ यू कैन बी द रीजन ऑफ योर स्ट्रेस? हाउ कैन बी यू, कोई बता सकता है कोई रीजन? मुझे दीजिए, पता माइक पास करो। क्या रखा है इसको, बोलना तो बोलिए। हाउ यू कैन, व्हाई यू थिंक यू आर द रीजन ऑफ स्ट्रेस? बोलो बोलो, बोलेंगे, इंटरैक्टिव होगा तो मजा आएगा। हु वांट टू स्पीक? अरे कुछ नहीं होगा, फांसी वासी नहीं लगाऊंगा मैं, टेंशन मत लो, डोंट वरी। बोलो, हु वांट टू टेल? किसको ऐसा लगता है कि वी आर द रीजन ऑफ स्ट्रेस? अरे मैडम खड़ी हुई है, एक जन को कोई माइक लो, बोलो एटलीस्ट। नहीं, अभी तो इतने सारे हाथ उठ रहे थे। अरे बोलो बोलो, कोई तो बोलो उधर से, यू वांट टू से। हाँ बोलो, उनको दो, उनको दो। Why you think that you are the reason of stress? You yourself. अब इतना बोलो ना, आप बैठ करो, पहले रिलैक्स करो आराम से। अभी भी हार्ट बीट बढ़ेगा। आई नो वो होता है, लेकिन ठीक है, आराम से रिलैक्स हो जाओ, फिर कोई बात नहीं। थोड़ा आगे माइक आगे। शी इज सेइंग कि हम बहुत सारी चीजें सोचते हैं और वो जब चीजें नहीं होती हैं तो हमको डिसअपॉइंटमेंट होता है और उसकी वजह से हम ऐसा सोचते हैं कि होगी कि नहीं होगी, इसलिए स्ट्रेस होता है। एनी वन ऑफ यू, एनी अदर थिंग जिनको लगता है, देखो उन्होंने बोला कुछ हुआ उनको अभी, शी इज फाइन नाउ। कुछ हुआ तुमको? हेलो बोलो सबको, से हेलो, हाय। कुछ नहीं हुआ, यू कैन स्पीक। हाँ आप लोग बोल सकते हो, तो कुछ नहीं। So one more answer, why you think that you are the reason of stress? और कोई? come on, ऐसे मतलब कम्युनिकेटिव इंटरैक्टिव सेशन होना चाहिए। कोई आप, अरे अपने आप से भी हाथ उठाना होता है, कभी कभी ऐसा हो सकता है। कोई भी नहीं है यार, क्या है? ऐसा नहीं लगता आपको कि मुझे इतने सारे लोगों के सामने बोलने का मौका मिल रहा है, मौका नहीं गवाऊं मैं? लगता ही नहीं लगता कभी? You are having fear of public speaking. ये दिखता है। वेरी गुड, क्या बात है, बोलो तो माइक। That's great. पब्लिक स्पीकिंग का फियर, डर, खौफ है आपको, खौफ। Come on, yes. Great, very good. Clap for her. और
क्लैप करने में कुछ जा नहीं रहा है, थोड़ा जोर से। Come on. So she is saying कि हम लाइफ से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं और वो फुलफिल नहीं होता है तो हमें स्ट्रेस होता है। वेरी करेक्ट आंसर। एंड ये जो आंसर्स हैं सबके करेक्ट होंगे। रीजन क्या है मालूम है उसका? आप अपने लाइफ में जो एक्सपीरियंस करते हो वही आंसर देते हो। एंड सबका लाइफ अलग अलग है, सबका लाइफ एक जैसा नहीं। सो एवरी आंसर ऑफ यू विल बी करेक्ट। तो ऐसा नहीं सोचता मैं उठ के बोलूंगी तो गलत आंसर निकल गया, वो गलत हो ही नहीं सकता। नो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। आपको जो भी लगता है वो सही है। तो बेसिकली हमको ये सब चीजें को मैनेज करना या अवॉइड करना सीखना है। इसके लिए यू हैव टू गो थ्रू अ माइंडफुल एक्सरसाइज। क्या करना पड़ेगा? अच्छा, आप सबसे पहले ये बताइए आपको पता कैसे चलेगा कि आप स्ट्रेस में हो? सबसे पहला रीजन, कोई आप उसको अवॉइड करने की कोशिश करोगे। अगर आपको पता ही नहीं चला कि आप स्ट्रेस में, तो आप अवॉइड नहीं करोगे। सो हाउ यू कम टू नो दैट यू आर अंडर स्ट्रेस और यू फील स्ट्रेस? क्या होता है ऐसा? वी आर वेरी प्रैक्टिकल इनटू इट, बिकॉज़ हम लोग वो स्लाइड में देखते देखते लिखा हुआ है वो सब करते जाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। ये सब स्लाइड्स इंटरनेट पे आप खुद बनाते हो, सब मिलता रहता है, कुछ नहीं। उससे रीड करने से अगर होता तो आज कोई भी स्ट्रेस में नहीं होता। करेक्ट ही नहीं? और दूसरी चीज, मैं यहाँ पे जो भी चीजें आपको बोल के जा रहा हूं, अगर उसको फॉलो करोगे तो काम होगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। ये भी दिमाग में रख लेना, क्योंकि देयर आर thousands of motivational speakers who speak on YouTube, who speak on TV, लेकिन अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो कुछ काम का नहीं। नो मीनिंग, देयर इज नो मीनिंग। हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया। आई हैव गिफ्ट फॉर अ पर्सन हु विल बी मोर अटेंटिव इन दिस सेमिनार। वो मैं स्टार्टिंग में बोलना भूल गया, लेकिन अभी से भी एक्टिव, एकदम एनर्जेटिक रहो और लाइक उसमें सब कुछ काउंट होगा। स्माइल करना, आंसर देना, सब मैटर करता है। ये खाली तो कोई रीजन के लिए स्माइल नहीं करना, ऐसा व्हाई यू नीड रीजन। और जब भी लाइक मैं बच्चों के सामने बातें करता हूँ और बोलता हूँ तो होता क्या होता है, बहुत सारे बच्चे आर लाइक बहुत शर्माते, मुंडी को नीचे ही डाल के रखते, मतलब मुंडी ऊपर ही नहीं आती। मैं उनको एक ही चीज बोलता हूँ, शर्मा मैं हूं, तुम क्यों शर्मा? व्हाई? शर्माओ मत, कुछ नहीं होने वाला। So you should have a proper eye contact. जब भी स्पीकर कुछ भी बोलते हैं या कोई भी यहाँ पे आपको समझाता है तो आपको आई कांटेक्ट करना पड़ता है। You have to be a good listener. You know, a research says that you don't listen. You are in very urge of speaking what you want. सुनता कोई नहीं। मतलब आपको पता है एक स्ट्रेस में रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी आता है, तो उसमें रिलेशनशिप बिगड़ने का कारण क्या होता है? इट इज नो प्रॉपर कम्युनिकेशन। आपको जो बोलना होता है बोल देते हो, सामने वाला क्या बोल रहा है टेल लगा झंझट नीचे अपने। सो यू डोंट डू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, दैट इज अ प्रॉब्लम। तो हमेशा सामने वाला क्या बोल रहा है उसको ध्यान से सुनो, and then you speak whatever you want. So same चीज यहाँ पे है, आपको सुनना होगा, बराबर concentrate करना होगा। You have to be a good listener first. If you are a good listener, you will understand everything. So now we are to the question, hey, how you come to know that you are stressed? It may be different for different people. It is subjective. When I say subjective, differ from subject to subject. मतलब इंसान से इंसान, सब्जेक्ट मतलब वो आप कोई सब्जेक्ट मत लेके आए। So how you come to know that you are in stress? Can anyone answer? How you come to know that you are in stress?
कुछ नहीं समझ में आता। और इधर देख रहे ये क्या लिखा है, ये वैसे भी इतना हार्ड वर्ड लिखा है कुछ समझेगा नहीं। तो आपसे मैं आंसर पूछ रहा हूं कि हाउ यू काउंटर, पहले पता तो चले कि अभी मेरे को स्ट्रेसफुल सिचुएशन आने वाला है, तो उसको मैं काउंटर कैसे करूं इमीडिएटली, बिकॉज इट शुड बी एन इमीडिएट रिस्पॉन्स। वो स्ट्रेस आपके ऊपर हावी होने के पहले आप क्या करना चाहिए, चल निकल, दैट शुड बी योर एटीट्यूड। सो विल यू से दैट कि आपको कब लगता है कि आप स्ट्रेस में हो, मेरे को पता चलेगा आपका स्ट्रेस क्यों होता है तो मैं उसके लिए रिप्लाई दे पाऊंगा। आपको कब लगता है कि आप स्ट्रेस में हो और आपको ऐसा फील होता है यार बहुत स्ट्रेस हो गया? यस, अरे बिंदास बोलना, देखो आप बोलोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा, ऐसे मजा नहीं आता है। ऑडियंस यस यस लो फील गुड। अभी देखो उन्होंने ऐसा बोला कि सर दर्द होना जब भी आपको हेडेक हो रहा है, अदर देन कोल्ड एंड फीवर। अच्छा, कोल्ड एंड फीवर के अलावा भी हेडेक होता है ना? अच्छा, ज्यादा होता है, वही ज्यादा होता है एक्चुअली। जब आपको कोल्ड और फीवर आने वाला होता है तब हेडेक आता है तो समझता है, मतलब इट इज नॉर्मल हुआ। बट इफ यू आर नॉट इनटू इलनेस, लेकिन फिर भी सर दुखता है, मतलब इट इज स्ट्रेस। पहले आप आइडेंटिफाई तो करो आप स्ट्रेस में कब होते हो, फिर आप उसको निकाल सकते हो। वन इज हेडेक, द सेकेंड वन इज फीलिंग लो। होता है आपको लो फील? क्या होता है पहले सर लो फील क्या होता है पता नहीं, क्या लो फील करना मतलब क्या होता है? किसी को तो पता नहीं है, हाँ लो फील होता है, हमको पता नहीं है फिर बोल रहे हैं, पांच वाला बोल रहे इसलिए बोल रहे। क्या होता है लो फील होना? सैडनेस, नाम इज सेइंग सैडनेस, यानी आप कुछ तो भी रीजन की वजह से एकदम सैड हो, आपका फेस एकदम डल है और आप ऐसे एकदम बैठे हो। You're very sad. I will talk about myself when I feel low. I feel low not because I am sad, but I feel low because I am unable to do certain things what I want. ऐसा भी होता है? लो उसके लिए फील होता है ना, या तो सैडनेस, आप किसी चीज से सैड हो या कुछ है उसकी वजह से लो फील करते हो, या फिर कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं कुछ करना चाहता हूं, मेरा कुछ टारगेट था लेकिन वो अचीव नहीं हुआ, वो चीजें सही नहीं चल रही है, इसलिए ऐसा फील होता है यार तू क्या कर रहा है, व्हाट यू आर डूइंग, और ये ऐसा करते रहेगा तो कहां तक जाएगा तू, दैट टाइम ऑफ फील लो। और जब लो फील करते हो तो आपका जो फेस है वो बहुत डल हो जाता है एंड पूरा नेगेटिव एनर्जी आता है, फुल नेगेटिव, एंड व्हेन देयर इज नेगेटिव एनर्जी स्ट्रेस comes. And what happens, you know, stress का mechanism ऐसा है, आपके पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो कम हो जाता है स्ट्रेस की वजह से। क्या होता है? ब्लड फ्लो कम हो जाता है, and when there is low blood flow, उसकी वजह से हार्ट बीट फास्ट होता है, because heart requires more amount of energy to pump the blood in your body. तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? थोड़ा साइंस मजेदार है, वो होता है, साइंटिफिकली भी समझना जरूरी है हमको क्या होता है। एंड जब ऐसा होता है सो ऑक्सीजन लेवल अगेन गेट्स रिड्यूस, और अभी आपको पता है कोविड नाम लेना होगा लेकिन कभी आना नहीं चाहिए वापस, उसमें हुआ क्या था एक्चुअली, मोस्ट ऑफ द पीपल डाइड इन हार्ट अटैक, मतलब कोविड नाम का था लेकिन ज्यादा लोग किससे मरे, एंड हार्ट अटैक वाज ड्यू टू स्ट्रेस, फियर
of getting COVID. उस वजह से ज़्यादा लोग टिकट करेंगे। And you know, मैं आपको मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूँ। 2 nights I was not able to sleep. मतलब ऐसा हो गया था, उस टाइम तो मैंने गला दुखेगा तो गया, बाजू वाला चीख कर वैसे तो फोड़ दिया। उसे हम लोग 100 मीटर 200 मीटर दूर भागे। It was like कि मेरा गला दुखने लग गया, तो जैसे ही गला दुखना चालू हुआ, न्यूज में चालू है कोविड का पहला सिम्टम आपके गले में दर्द होगा। फियर आ गया अंदर। अब जैसे फियर आया, मैंने अब बॉडी क्या रिएक्ट करेगा आपको पता है, ये गला का दर्द कैसे खत्म हो जाए, फटाफट ठीक है। तो उसमें वो सॉल्यूशन कर देगा, फिर वार्म वाटर पीएगा, ये सब चालू। एंड यू विल नॉट बिलीव, हर 1 घंटे के बाद मैं गर्म पानी पीऊँ, हर 1 घंटे के बाद, क्योंकि उस टाइम क्लासेस और जो भी हमारा काम था सब बंद था, एवरीथिंग वाज ऑनलाइन। तो मैं क्या कर रहा था, हर 1 घंटे में आप किचन में गर्म कर रहा हूँ, और गर्म भी नॉर्मल गर्म नहीं है, मस्त एकदम जलना चाहिए, निकल कैसे भी निकल उतना खतरनाक। तो हर 1 घंटे में आ रहा हूँ, हर 1 घंटे में आ रहा हूँ कि 2 दिन ऐसे हो गए। I was not able to sleep that night. My heartbeat was so fast because of that fear कि मुझे हो गया। और जब ये fear आ गया, मुझे हो गया, तो रात को नींद नहीं आई। That is stress. मैं डॉक्टर के पास गया 2 दिन के बाद, बोला सर ऐसा हो गया, बहुत डर लग रहा है, इतना क्यों डर रहा है? वहां जाके मतलब चल के गया था, लेकिन ऐसा क्या लग रहा था भाग के गए। सब लोग बजा चले, तो बोलते क्या हो रहा है? सर गला दुख रहा है और ये सब हो रहा है, बुखार नहीं है, गला नहीं, एक भी थोड़ा भी नहीं। बोला सर मॉर्निंग में अभी भी रनिंग करके आओ। तो बोलते ऐसे गला दिखा, वो क्या गर्म पानी पी के इतना लाल कर लिया कि बोले क्या हो गया? You have to go for COVID test. जो सोच रहा था वही हो रहा है। बाप रे बाप, उन्होंने सीधा बोल दिया कोविड टेस्ट कराओ नहीं। बट मैंने उस टाइम पे सोचा कि I have to mind, because मेरे को हुआ होता तो बुखार आता, ये आता होगा, बहुत सारे सिम्टम्स होते, लेकिन 2-3 दिन में गला दुखा तो वो सब नहीं है, मुझे पता चल गया। एंड वो स्ट्रेस को मैंने मैनेज किया। एंड हाउ आई मैनेज दैट स्ट्रेस वाज by giving training to my mind. How I did, I will explain you, because वही चीज करनी है आपको कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन। वो स्लाइड आप चेंज नहीं करो, ठीक है, वो सब उधर साइड में तो दूंगा, आप देख लीजिए। लेकिन मेन है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, व्हाट आई गॉट इन दिस कोविड सिचुएशन एंड ऑल द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तो व्हाट आई डिड, यू नो, ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन में व्हाट आई डिड वाज आई स्टार्टेड राइटिंग पॉजिटिव अफर्मेशंस। ये क्या होता है, यू नो, पॉजिटिव अफर्मेशंस अरे पता है क्या, यानी मेरे माइंड को मैं ये बिलीव कराता रहा कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस इतना ही। And after 4 days I was very fine. और वो कैसे कराया मैंने, मॉर्निंग में I used to write 15 minutes, 15 मिनट एक बुक में अफर्मेशन लिखता था। What I used to write was I am fine, I am healthy, every positive, and positive affirmation लिखने से क्या हुआ, इसको ये लगा के भाई ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। You know what? You all invest your all money
from this part. जो भी पैसा लगा तो इधर से इधर कीजिए बस. इसके लिए कुछ नहीं करते. इसके लिए करना आप सीखोगे, you will be very successful. So what I did was मैंने affirmations लिखना चालू किया और 15-15 मिनट तक मैं affirmations डेली लिख रहा था. सुबह उठने के बाद, रात को सोने के पहले, लिखने के बाद इन affirmations को बैठ के मैं माइंड आंखें बंद करके और इन affirmations को वापस बोलता भी था with proper breathing exercise and having a smile on my face. अच्छा, what you all think? Having a smile is a natural body phenomena or we have to create it? क्या लगता है? मतलब कुछ आगे सामने अच्छी चीज हो रही है, कॉमेडी चीज हो रही है या कुछ कॉमेडी हो रही है, कोई ऐसी आएगी कि हम अपने आप भी अपने आप को खुश रख सकते हैं. What do you think? क्या बोलते हैं आप लोग? कि कोई हमको हंसाएगा, कोई हम हंसेंगे? क्या बात? ऐसा नहीं. आपको तो कोई ना कोई चाहिए हंसाने के लिए, ट्रेन रहने चाहिए, कोई होता है. अकेले बैठे, अगर कभी आप अकेले बैठे हो और अकेले बैठे बैठे आपको डर फील हो रहा है, आपने स्माइल किया, ऐसे कभी हुआ है? हुआ है? ये आपको करना पड़ेगा. फर्स्ट थिंग आई एम टेलिंग यू, whenever you feel stress, whenever you feel low, whenever you feel sad, whenever you feel headache, just give yourself 15 minutes. How many minutes? ऐसी जगह पे आप घर में ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ पे कोई डिस्टर्ब ना करे. पहली बात तो ना हेडेक भी चला जाएगा आपका. हेडेक भी रहेगा. यू नो आप लोग हेडेक होता तो क्या करते हो? कितने लोग रेजिस्ट करते हो आप लोगों में से? बोलिए नहीं खाएंगे. ओ माय गॉड. तो क्या करते हो? सो जाते हो. सोने से क्या होता है? माइंड शांत हो गया, दर्द चला गया. अगर आप जागते जागते ये माइंड को शांत कर लो तो भी चला जाएगा. बट दिस इज व्हाट यू नीड टू लर्न. ये लर्न करना. नाउ सिचुएशंस व्हाट मेक्स यू स्ट्रेसफुल इज लाइफ ट्रांजिशंस दैट आर इमीडिएट, सिचुएशन इन स्ट्रांग डिमांड, कंट्रोलेबिलिटी, यानी कोई आपको कंट्रोल कर रहा है, डिजायरेबिलिटी, एम्बिग्युइटी, ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस आता है. ऑल दिस का एग्जांपल जो आपने दिया वही सब है. लाइक हेडेक होना, सैड फील करना, लो फील करना, ठीक है, गुस्सा, एंगर इज वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट यू हैव फील स्ट्रेस. और किसी पे गुस्सा कर दिया तो आप शांत हो जाते. ऐसा होता है? पूरा भड़ास निकाल दिया. मुझे लगता है हाश अभी रिलैक्स हो गया. सब कुछ जो भी था मन में सब बोलता लाइक और फिर रिलैक्स हो गया. So these are the times when you are most stressful. So these are the times when you are very much stressful. और आपको ये चीजों से बाहर कैसे निकलना है वो बहुत इम्पोर्टेंट. और इस वीडियो आगे लाइफ में you are also going to become parent sometime. But अभी से ही अगर आप सीख जाओगे कि हमको स्ट्रेस को अवॉइड कैसे करना है तो ये सिचुएशन नहीं होगी. ये क्या होगा इसमें? पेरेंट्स आर स्ट्रेस, एक दो लापा मार देते हैं, पीट देते हैं, फिर थोड़ी देर चुप रहते हैं हम लोग डर की वजह से, फिर वापस वही था, फिर वापस मार खाते हैं. द प्रोसेस गोज ऑन, चलते रहता. दिस वाज अबाउट
video of stress of parents. Parents का ये stress. Now, one more thing. There are many misconceptions about stress. कि stress होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. There are two types of stress. One is bad stress and one is good stress. तो bad stress नहीं होना चाहिए, good होना चाहिए. अब वो कैसे होता है सर? अगर आपको कोई काम का थोड़ा बहुत स्ट्रेस है, it is a good stress. It is exams का स्ट्रेस है. एग्जाम्स के स्ट्रेस होंगे तो आप पढ़ोगे, नहीं तो पढ़ोगे. तो there are some good stress and some bad. अब बैड स्ट्रेस में बेसिकली क्या आता है? जब आप लो फील कर रहे हो, ऑप्रेस फील कर रहे हो, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ गई है, या फिर आप फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में हो, पैसे नहीं है आपके पास, लोगों से मांग के काम चलाना पड़ रहा है, किसी को देना है तो आपके पास पैसे नहीं है, या फिर आपकी नीड्स फुलफिल करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है. देयर यू आर स्ट्रेस. दैट ऑल आर बैड स्ट्रेस एंड उनको अवॉइड करना है. बिकॉज क्या अवॉइड, अभी क्या कोई ऐसा बोलेगा सर मेरे को एग्जाम का स्ट्रेस हो रहा है, इसको अवॉइड कर लो, तो एक काम करते ना, बाहर खेलने चल जाए, एग्जाम के टाइम खेलने चले गए. सर ने बोला था, वो मेरा हाथ नहीं है इसमें, अभी मैं बैड स्ट्रेस और गुड स्ट्रेस बता रहा हूँ. किसको अवॉइड करना है वो देखो. नहीं तो पता चला एग्जाम के टाइम पढ़ना है, उसका स्ट्रेस हो रहा है तो कुछ और ही करने लगे. सर आपने तो बोला था वो थिंकिंग को हटाना है, आपने कुछ और ही हटा दिया, एग्जाम का आंसर ही हटा दिया. ये आंसर की वजह से स्ट्रेस हो रहा था सर. ऐसा नहीं होना चाहिए. तो गुड स्ट्रेस एंड बैड स्ट्रेस तो आपको हटाना है. बैड स्ट्रेस मतलब आपको लो फील कर रहा है, हेडेक आ रहा है, ये सब को आपको दिखाना है. सो दैट वी आर गोइंग टू लर्न. नाउ रिस्पॉन्सेस आपको कैसे मिलेगा? आइदर यू विल गेट फिजिकल रिस्पॉन्स ऑफ, फिजिकल मतलब वो अभी हाथ मार के नीचे गिरा है, दैट वाज फिजिकल रिस्पॉन्स. ऐसा मार पीट घर पे चल रहा है, मम्मी झाड़ू लेके मार रही है, वो सब फिजिकल रिस्पॉन्स. बिहेवियर रिस्पॉन्स सिर्फ गुस्सा कर रहा, दैट इज बिहेवियर रिस्पॉन्स. मेंटल रिस्पॉन्स यानी आप सिर्फ किसी को कुछ बोल रहे हो, सोचते जा रहे हो बस. ओवरथिंकिंग, यू आर गोइंग ऑन ओवरथिंकिंग. एंड इमोशनल रिस्पॉन्स, यू आर क्राइंग. इमोशनल रिस्पॉन्स में क्या आता है? सर रो लेते हैं तो खत्म हो जाता है स्ट्रेस. कितने लोग ऐसा सोचते हैं? रोने के बाद हल्का फील होता है, एक दो और मतलब जब भी आप स्ट्रेस आउट होते हो तो रोना आ जाता है ऐसा, और रो लेते हैं. बट डोंट यू थिंक कि रोने से अच्छा कोई ऑप्शन होना चाहिए? और वो ऑप्शन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमको एडिक्शन लगे. मतलब हम स्ट्रेस है तो हम ऑनलाइन यूट्यूब ये वो देख लें तो हो जाता है, वो अगेन यू आर क्रिएटिंग एडिक्शन टू यू. So there should be some other option. So physical, behavioral, mental and emotional response due to stress. Now अगर आपको इसके लिए कुछ ऑप्शन चाहिए तो you have to do certain things which I will be telling you later on. Now what is stressful to you? These are the things which are everything, सब कुछ आ गया है. मतलब हर एक चीज जो हमारी लाइफ में सब स्ट्रेसफुल है. कौन सी चीज स्ट्रेसफुल नहीं है? When you study 10th का बोर्ड एग्जाम है, स्ट्रेस. फिर 12th का एग्जाम आया, स्ट्रेस. ग्रेजुएशन कर लिया, जॉब नहीं मिल रहा है, उसका स्ट्रेस. फिर जॉब मिल गया, उसका भी अलग स्ट्रेस. अरे जॉब मिल गया, काम बहुत ज्यादा हो गया तो उसका स्ट्रेस अलग है. जॉब मिलने के बाद स्ट्रेस हो गया, उसके बाद शादी नहीं हुई, उसका स्ट्रेस. और शादी हो गई, उसके बाद तो आप समझ गए. So these are the things: work, classes, study, relationship with partners, family, friends, trauma, change in residence. So
सोशल एक्टिविटीज कम हो गया आपका, रूममेट, चाइल्ड केयर, फाइनेंस, अपीयरेंस, फिजिकल हेल्थ, फिटिंग इन, न्यू स्कूल, ईटिंग हैबिट्स, मेंटल हेल्थ, लॉ वायलेशन किया, these are all reasons of your stress. और इसमें सब कुछ आएगा, ये सब हम सब चीज में स्ट्रेस होते हैं, कोई ऐसी चीज है जिसमें स्ट्रेस नहीं, सब कुछ। क्यों स्ट्रेस होता है? बिकॉज यू द वे यू थिंक, कोई भी सिचुएशन को आप किस तरीके से सोचते हो उसकी वजह से स्ट्रेस होता है। कोई भी एक्टिविटी आपके सामने आई, अगर आप डर गए और डर के आप सोचने लगे तो स्ट्रेस होगा, और उसको ही आपने स्माइल के साथ एक्सेप्ट किया और अच्छा फील किया तो स्ट्रेस नहीं है। कोई भी आप में से एक आपके लाइफ में स्ट्रेसफुल सिचुएशन बताओ, मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा उसको अवॉइड कैसे करके उसको नॉर्मल में कैसे कन्वर्ट करें। कोई भी एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन, कोई भी एग्जांपल बताओ। गिफ्ट मिलने वाला, there is a reward, yes you can, कोई भी come on, yes, thank you so much. Public speaking एंजाइटी हो जाती है, oh my god, आप इधर आए। एंजाइटी हो जाती है पब्लिक स्पीकिंग में। मैं अपने बारे में बताता हूँ। When I was in 10th, जब मैं 10th में था, माहौल कुछ ऐसा था हमारे स्कूल में, आपको पता है न्यूज वगैरह बुलाते हैं सुबह सुबह और न्यूज बोलते हैं, बोला है, हाँ सब लोग ऐसा होता है। तो क्या होता था, जिसका न्यूज का टर्न होता था वो बंदे को न्यूज लाना है, उसके पिछले 2 रोजों पर भी लाना है और आगे वाले 2 को भी लाना है। क्यों? डांडी मार लिया तो लाना पड़ता था। What I used to do, you know, 5 दिन एब्सेंट, सीधा 5 दिन का छुट्टी, महीने का 5 दिन का छुट्टी मेरा फिक्स रहता। रीजन, fear of public speaking, the same fear। लेकिन अभी do you think any fear? I'm enjoying। fear नहीं है। It is just because how I am dealing with the situation, how I am thinking about it। पहले मैं क्या सोचता था पता है आपको? अभी आपके लिए आंसर है, देखना। और जो जितने भी लोग हैं, जो लोग पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं, उसका बता रहा हूँ मैं। उस टाइम फिर भी मेरे को स्कूल वालों ने पकड़ा, 5 दिन के बाद 6ठे दिन मेरे को ही बोला, 5 वाले का न्यूज दे बोलो। मैं गया स्टेज पे, मैं बोल रहा हूँ, मेरे हाथ कांप रहे, मेरे पैर कांप रहे, ऐसे पूरा हिल रहा हूँ। I was shivering एकदम। और उसके बाद मैंने सोच लिया कि मैं कभी स्टेज पे नहीं जाऊंगा, चाहे मेरे को कोई मार दे, कुछ भी कर ले, मैं जाऊंगा ही नहीं, जिंदगी में नहीं जाऊंगा। इतना खतरनाक फियर था उस दिन, मतलब हार्ट बीट वाज वेरी फास्ट, आई वाज स्वेटिंग, शिवरिंग, क्या होता मेरे को नहीं मालूम। मल्टीपल थिंग एट द सेम टाइम, ऐसा लग रहा था कोई केमिकल रिएक्शन हो गया अंदर। It was such a worst experience। लेकिन बाद में when I came in teaching, मतलब पढ़ाने लगा मैं, तो एक्चुअली जो भी आप लोगों के सामने बोलना चाहते हो, पहली चीज वो सब्जेक्ट का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। इफ यू वांट टू डू पब्लिक स्पीकिंग, सबसे पहले बात, अगर आपके पास वो सब्जेक्ट का नॉलेज होगा, you will have no fear। Why? You are confident about yourself। क्या?
मैं जो भी बोलूंगी अच्छा बोलूंगी, मस्त बोलूंगी, आई हैव दैट नॉलेज है मेरे पास बस। तो मैंने मेरा पहला टीचिंग का एक्सपीरियंस ऐसा था हमारे कॉमर्स में। यू आर ऑल फ्रॉम साइंस में और कॉमर्स मिक्स सबके सब ओके। तो साइंस सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं, कॉमर्स का एक सब्जेक्ट था जिसमें मेरे को बहुत इंटरेस्ट था और एक सर ने मुझे ऐसे भेज दिया, ये 4 बच्चे हैं इनको आके पढ़ा। मुझे नॉलेज था, मैं गया और उनको जब मैंने पढ़ाया और उन्होंने मेरे तरफ तो देखा कि बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा पढ़ा सर, समझ में आया। उस दिन से मुझे इंटरेस्ट आया। Why? The reason was only one. I was having knowledge. अरे प्रॉब्लम क्या होने वाला है आपके लिए पब्लिक में इधर आके तो आप कुछ बोलो, आपके पास कुछ है नहीं बैक ऑफ द माइंड कि आप क्या बोलो, इसलिए आप डरते हो, बाकी कुछ नहीं, कोई डर नहीं। तो आपको जो सब्जेक्ट में नॉलेज है कुछ तो पढ़ा होगा, तो आगे सिर्फ 1 मिनट बोलना है, कुछ नहीं होगा। ये सब हमारे फ्रेंड्स हैं, कोई कुछ नहीं करने वाला। क्या हम फांसी लगाएंगे इनको? टेंशन क्या लगेगा? क्या हो गया? आपके पीछे पीछे मैं रिपीट करूंगा, आ जाओ, कम ऑन, कुछ नहीं होता। व्हाट टॉपिक आर गोइंग टू से, कुछ भी बोल सकते हो। पहले जस्ट रिलैक्स, आंख बंद करो, हैव अ डीप ब्रीथिंग, स्माइल कीजिए, कम ऑन, ऐसा देखो, इधर देखो, relax. You can stay. You can move. Good topic. Hello everyone, myself Krishna Desai and I am from second year computer department. Okay. What you like? What you don't like? I like drawing. Okay. Do And it's my hobby. Okay. And सबको देखो। Watch everyone. खाली एक ही जगह मत देखो, सबको देखो, सब लोग सुन रहे हैं और सब लोग हैप्पी हैं आपकी बात सुन के। बोलिए। yeah, so I like drawing and the thing I don't like is math. You like maths? Which subject you like? Which subject you like more? Uh, उधर देखो, नीचे मत देखो, सबको देखो। Good. Like? C++. Okay. अभी डर लग रहा है? थोड़ा कम हुआ? That's great. और कुछ बताओ। Sports, dance. I hate sports. Oh my God. बोलो जो भी अच्छा I love reading books. Okay, that's great. Friends and all. Yeah, I have one best friend. बस तो आपको जो आता है वो बोलोगे तो कुछ करते हैं। सबको हेलो। Hello. हेलो एवरीवन, सबको से क्या हुआ? कुछ किया उन्होंने? कोई आ रहा है वहां से मारने के लिए? इसे एनीवन कमिंग? नहीं ना? सो ये डर निकालना पड़ेगा आपको। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो डर निकालना पड़ेगा। डर नहीं निकाला तो कुछ नहीं होगा। This is the only way you can reach masses. वो मास नहीं है, ज्यादा पब्लिक तक आप पहुंच सकते हो ओनली थ्रू पब्लिक। बस ये ध्यान रखना। अगर आपके अंदर पब्लिक स्पीकिंग की स्किल आ गई, यू आर अ लीडर। ये ध्यान रखना, आप लीडर बन जाते हो तुरंत के तुरंत। एंड आप कितने लोग, थैंक यू बेटा, क्लैप फॉर हर। We want good job, we want to earn money, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको नॉर्मल लोगों के ऊपर जाना है, नॉर्मल लोगों से ज्यादा कमाना है, तो यू शुड हैव आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। क्यों? कंपनी उसी को ज्यादा पैसा देती है जो लीड कर सकता है, जो लोगों के सामने बात कर सकता है, लोगों को ट्रेन कर सकता है, समझा सकता है एंड मैनेजर लेवल पे है, उसको ही पेमेंट ज्यादा मिलेगा। तो अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग नहीं आता है, यू हैव फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, तो आपको बोलना चाहिए, सीखना चाहिए। और कोई भी बर्थ से सीखे ना, मैं मेरा खुद का एग्जांपल दिया ना आपको।
कोई भी नहीं सीख के आता है। और ये डर को जितना जल्दी बाहर निकालोगे उतना जल्दी आप आगे बढ़ोगे। सो फियर को बाहर निकालिए। सिग्नल वार्निंग्स हमने डिस्कस किया कि कभी आपको स्ट्रेस होगा, वो हमने देखा। नाउ वी आर ऑन टू सम सजेशंस। अभी आप सोच रहे होंगे सर ऐसे स्ट्रेस होता है, ये होता है, तो हमको सजेशंस दीजिए कि स्ट्रेस कम कैसे होगा। द सजेशंस आर फर्स्ट, सपोर्ट सिस्टम। How many of you have support system? Support system means you, if having any thought in your mind or any worries in your mind, you have someone whom with you can share something. कितने लोगों के साथ ऐसे? कोई तो है। Okay, that's great, that's great. So you need to find a support system. अगर है तो बहुत अच्छी बात। And support system में ऐसा होना चाहिए, आप बोल रहे हो तो सामने से solution भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुन के हाँ 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 हाँ, solution should be there, and there should be someone who is experienced. क्या होना चाहिए? Experience वाला बंदा होना चाहिए, जो ये सब चीजों से डील कर चुका है, आपको जो प्रॉब्लम फेस होने वाली है उनसे डील कर चुका है। ऐसा कोई तो भी आपके पास होना चाहिए जिससे आप अपनी फीलिंग शेयर कर सको। अगर आपके दिन में जो भी कुछ हुआ है और आप शाम को शेयर कर लेते हो, इवनिंग में शेयर कर लेते हो, आपका स्ट्रेस विल be avoided 100%, 110%। क्यों? क्योंकि हम चीजों को दिमाग में रखते हैं कंटिन्यूअसली, इसलिए क्या होता है? स्ट्रेस। लेकिन अगर आप जब बोल देते हो तो वो बाहर चले, तो स्ट्रेस विल बी reduced और निकल जाए। पहला ये is changing your attitude। Stress is, I say, 10% in life, but 90% what you react। इसका मतलब क्या? जो भी अपनी लाइफ में होता है वो सिर्फ 10% होता है, लेकिन 90% जो भी चीजें होती है वो हम रिएक्ट करते हैं उससे होता है। अभी सपोज ऐसा कुछ हो गया कि आपके साथ आके कोई झगड़ा कर, सपोज ठीक है, someone is fighting with you, या आपकी किसी के साथ फाइट हो गई, so what you will do in that situation? क्या करोगे? मुक्कामुक्की, बाल खींचेंगे, क्या करेंगे आप? झगड़ा हो तो क्या करेंगे? What you will do normally? I'm asking, बोलो ना रे बाबा, बोलेंगे तो मालूम पड़ेगा ना। ये सब सिचुएशंस है जहां पे आपको स्ट्रेस होता है, तो उसको हमको हटाना है, कैसे हटाएंगे वो देखना है। सो क्या करोगे अगर आपको ऐसा हो गया कि किसी का झगड़ा हो गया, पहले बोला वाली हो रहा है, अगर कोई आपको आके चिल्ला रहा है तो आप क्या करोगे? हाँ, अगर आपका टीचर्स है तो आप कुछ बोल नहीं सकते, वो अलग बात है, लेकिन फ्रेंड में ऐसा हो रहा है तो क्या करोगे आप? अच्छा, इग्नोर कर दोगे? अच्छा, गलती नहीं रही तो सामने वाला सुनेगा। इनका कहना है कि या तो हम इग्नोर करेंगे। डू यू थिंक यू कैन इग्नोर इफ समवन इज, यू कैन इग्नोर कर सकते हो आप लोग? अगर कोई सामने से बोले जा रहा है, क्या आप इग्नोर कर सकते हो? और इग्नोर नहीं कर सकते तो सामने वाला सुनेगा मतलब आप सुनाओगे एकदम, गलती नहीं है तो फुल ऑन। This is what आप रिएक्ट कर रहे हो। 90% of stress comes from this. You have to make up your mind such कि कोई बोल के भी गया ना तो अपने को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अगर आपको स्ट्रेस से बाहर रहना तो। अभी मेरे को बहुत सारे लोग मिलते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, मेरे को कोई आके बोलता है सर आपके बारे में ऐसा बोल रहे हैं, उसको नहीं ऐसा सामने नहीं बोलता हूँ, माइंड को बोलता हूँ, आने नहीं देता इस पे, खत्म। तो मैं रिएक्ट कैसे करूंगा? आई लेट गो। इसमें क्या होता है, अगर आप रिएक्ट करते हो तो आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, आप हाइपर हो जाते हो, आपका स्ट्रेस बढ़ता है, और कुछ नहीं होता है। अगर आपने ऑब्जर्वेशन रखा होगा तो आपका दिन खराब जाएगा, सुबह हुआ तो पूरा दिन खराब।
और अगर आपने माइंड में बोले निकल थोड़ा दिन मस्त है, ये फर्क है. So it life is 10% what happens to us. हमारे साथ जो भी होता है it is only 10%, but 90% is what we react. जैसा रिएक्ट करोगे. अभी कोई अगर आपको बोल के गया, चिल्ला के गया, उसके सामने कुछ रिएक्ट नहीं करने का, और ऐसी बातों को ना अंदर ऐसा दिमाग को ऐसा ट्रेन कर दो कि चीजें अंदर ही नहीं जाए. एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है मालूम है? यहां से यहां तक पहुंच जाते हैं, यहां से यहां पहुंचेंगे तो तकलीफ होगी, पहुंचने नहीं देगा, यहीं से भगा देगा. एंड दैट इज योर माइंड का एक्सरसाइज व्हिच यू नीड टू डू. बी रियलिस्टिक. अभी जैसे कि किसी ने तो अभी बोला था कि सर हम एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रख लेते हैं और वो चीजें होती नहीं है, इसके लिए स्ट्रेस होता है. बिकॉज यू आर सेटिंग अ वेग गोल व्हिच यू नो दैट विल नॉट बी अचीव्ड. अभी हम सोचेंगे हमको 100% आ जाए और बाद में नहीं आएंगे, उसके लिए रोएंगे, तो फिर कैसे करेंगे? नॉट पॉसिबल. सो आपको जो भी अपन सोच रहे हैं वो क्या होना चाहिए? रियलिस्टिक. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियलिस्टिक? पॉसिबल होना चाहिए. लाइफ में वो चीजें पॉसिबल होंगी तो ही आप कर सकते हो. सो यू हैव टू बी रियलिस्टिक, वेरी रियलिस्टिक. हाँ, वन मोर थिंग आई वुड नीड टू से यू, जब भी कोई भी सिचुएशन आएगा, rather than focusing on problems, you should find solution. हम क्या सोचते हैं? ये प्रॉब्लम हो गया, ये प्रॉब्लम हो गया, ये प्रॉब्लम हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया. Rather than focusing on that, आपको क्या करना है? Solution पे वर्क करो. Solution निकालो, इसका solution क्या होगा? So that is the thing. Next, get organized. यानी प्रॉपर तरीके से आपको ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा. ऑर्गेनाइज यानी आपको सारी चीजें प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना होगा. हम स्ट्रेस कब होते हैं? अभी जैसे घर से निकलने लेट हो गए, ट्रेन पकड़ना है, बस पकड़ना है, लेट हो गए, पहुंचने वाले, पहुंचने को स्ट्रेस हो रहा है, उतने टाइम के लिए जितना टाइम लेट हो. तो अगर आप ऑर्गेनाइज रहोगे तो प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, टाइम टेबल प्रॉपर बनेगा. नेक्स्ट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. थोड़ी देर पहले मैंने बोला था अभी आपको, कुछ लोग बैठे बैठे मुरझा गए. ऐसे धीरे 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 पहले से स्माइल कीजिए. स्माइल एवरीवन, स्माइल एटलीस्ट. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. टेक ब्रेक्स, गिव योरसेल्फ मी टाइम. आई से अपने आप से मिलो. यू शुड हैव सेल्फ टॉक्स. ब्रेक्स यानी आप 5-10 मिनट का 15 मिनट का नैप ले सकते हो. जब आप एकदम ऐसा लगता है अभी थोड़ा रेस्ट करना चाहिए तो यू कैन रेस्ट. लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए रेस्ट ले रहे तो रेस्ट नहीं ले रहे. बहुत सारे लोग सर ने बोला रेस्ट लेने का, तो क्या करते हो आप? लोग 10 मिनट काम करते हो, 20 मिनट रेस्ट लेते हो. ऐसा नहीं होना चाहिए. गिव योरसेल्फ मी टाइम. आप खुद से अपने आप से बात करो. हफ्ते में एक दिन कम से कम हाफ एन आवर अपने लिए निकालो. अपने गोल्स के बारे में अपने आप से बात करो. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. देन आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, जो भी आपको डाउन मतलब फील हो रहा है, लो फील हो रहा है, सो यू शुड टेक सम डीप ब्रेथ्स इन एंड आउट एंड यू शुड गेट स्माइल. सो वी डू दैट नाउ. कभी भी हाँ, ये कब कर रहा है मैं आपको बता रहा हूँ. और ये स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में करना तो डेफिनेटली आपको आउटकम्स अच्छे मिलेंगे. मैं क्या करता हूँ, मेरा कभी सर दुखता है, आई एम आल्सो ह्यूमन बीइंग, तो सर दुखना ही है. जब भी सर दुखता है ड्यू टू सम फैक्टर्स, सबको स्ट्रेस होती है, फाइनेंशियल ये वो सब रहता है. लेकिन उसको मैनेज यानी अवॉइड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो मैं करता हूँ वैसे ही करना पड़ेगा. आई सिट इन माय ऑफिस, नीचे बैठ जाता हूँ. अभी नीचे बैठ सकते हैं, मतलब चेयर पे बैठ के भी चलेगा. What I do, I sit down, I close my eyes like this and just start breathing in. I have a smile on my face. Exhale, inhale, exhale. I just smile for no reason. I just smile for no reason.
कोई रीजन नहीं यार, स्माइल करते हैं अपने आप, बॉडी का मैकेनिज्म ऐसा लगेगा सर तक चला जाए। अभी जब भी ऐसा होता है, मुझे मेरे लेक्चर्स लेने होते हैं, अगर सर में दुखेगा तो लेक्चर कैसे लेना है, तो मैं इमीडिएटली वो चीज करता हूँ। सो नाउ यू आल्सो हैव टू डू, एंड जब भी आपको लो फील होगा, whenever you feel low, whenever you feel sad, whenever you feel angry, या फिर आपको रोना आ रहा है, तो ये चार, जब भी आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन लगेगा, ये करना है आपको, मैं भी बता रहा हूँ एवरीवन, एंड पूरे एफर्ट्स के साथ करना, पूरे एनर्जी के साथ। सो इट शुड बी लाइक दिस, मैं अभी कर रहा हूँ, आपको देखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको, अभी मैं बता रहा हूँ, फिर आपको करना, पहले ध्यान से देखो। You have to close your eyes like this, करना नहीं है, मैं बता रहा हूँ, फिर आपको करना। नहीं तो कुछ लोग बाद में नहीं बताया तो कुछ भी करते। कैसे करते बाद में? आंख बंद कर लेते, फिर एक आंख खोल लेते। सर आपने तो बताया नहीं था। So it is like that. So basically आपको आंख बंद करना है एकदम आराम से। Just you should have a smile, little smile on your face, the gentle smile. ऐसा वाला नहीं, जबरदस्ती नहीं, gentle smile. Then you need to inhale, full inhale. Should have smile constantly. ये आपको next 3 to 4 minutes के लिए करना है, और जिसको इसकी आदत भी होगी, उसको जब आप आंखें खोलोगे या फिर बीच बीच में आपको ऐसा लगेगा अभी खोल लेना चाहिए, आंखें खोल लेना चाहिए, बिकॉज यू आर नॉट फोकस्ड। नहीं करते हैं, कोई भी नहीं करता, इसके लिए इतना स्ट्रेस होता है। और आप करोगे, इसे माइंडफुल एक्सरसाइज, अगर आप करोगे स्ट्रेस कम होता है। दिन में 20 मिनट करना होता है, कितना? एक साथ 20 मिनट बैठ के करना इम्पॉसिबल है इन स्टार्टिंग। यू कैन स्टार्ट विद 3 मिनट्स 4 मिनट्स, धीरे धीरे एक एक टाइम बढ़ाते जाओ। लेकिन अगर आप करोगे, जब भी आप ये सब सिचुएशंस में होते हो, जो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस है, अगर उसमें आप ये करोगे, मैं 100% बोलता हूँ, एक भी चीज आपको स्ट्रेस नहीं आएगा, या आया होगा तो निकल जाएगा, पक्की बात। सो नाउ एवरीवन क्लोज योर आईज, स्माइल ऑन योर फेस। स्माइल इज वेरी प्रीशियस. Your smile is very precious. Just have a smile on your face. Now take a deep breath in. Deep breath in and exhale through mouth. Have a smile. Don't lose smile. Smile होना ही चाहिए. Smile is most beautiful thing in the world. My smile, your smile are very precious. Inhale and have a smile on your face. बहुत सारे लोग अभी भी कुछ सोच रहे हैं, स्माइल नहीं कर रहे हैं. Have a smile on your face. You will feel a great feeling after doing this, but smile करना बहुत जरूरी है. Inhale, deep inhale. Exhale. Smile. सबसे important है smile. Come on, keep doing this. आंखें नहीं खोलनी जब तक नहीं खोलनी. किसी को चक्कर भी आएगा, क्योंकि मैं बहुत हार्ड चीज करवा रहा हूं आपसे. Smile, come on. Inhale, exhale. Focus on breathe. Just focus on your breathe. When I'm inhaling and exhaling, just focus on your breathe.
यू आर नॉट इनहेलिंग प्रॉपरली। आवाज आनी चाहिए इनहेल करने की खुद को। यस, जितना ताकत है उतने ताकत से इनहेल करो। Come on. Last 2 minutes. Focus on your breathe. Inhale, exhale. Smile, smile. I'm watching you. Smile. Okay. Slowly open up your eyes. Slowly, slowly. झटके से। This you have to do whenever you feel sad, low, angry, emotional. ये करना है आपको। You will feel the difference. ये एक दिन से नहीं होगा, आज रात को कुछ नहीं होगा मेरे को। कुछ तो ऐसा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, अभी बताया आपने, ये टाइम लगता है। Immediate effect नहीं होगा। If you do it continuously in the situation, धीरे-धीरे इसका असर लगेगा। आप दवा भी खाते हो तो दवा तुरंत असर करता है क्या? It take time. तो ये तो नेचुरल चीज है। Take care of yourself, give proper sleep, and one of the important thing is to reduce stress is learn to say no. यानी आप अपने काम को छोड़ के दूसरे काम में नहीं जाने का, नो बोलना सीखो। फ्रेंड्स को बुरा लगे तो लड़ने दो, कोई बात नहीं। आपका काम इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपना काम छोड़ के दूसरे का काम करोगे तो आप बाद में एट द एंड यू विल बी स्ट्रेसफुल। So learn to say no. This is most important thing. ना बोलना सीखो। कितने लोग ऐसे आ रहे हैं उसको बुरा लग जाएगा इसलिए मैं चली जाती हूँ। फ्रेंड के साथ घूमने जाना है, फ्रेंड का कॉल आया है चलना घूमने चलते हैं। सबसे बड़ी गलती, बाद में आप इसकी वजह से स्ट्रेसफुल हो जाते हो। उस टाइम आपको अच्छा लगता है लेकिन बाद में जो काम पेंडिंग रहता है उसकी वजह से आप स्ट्रेसफुल होते हो। So learn to say no. Now this is most important thing. Get regular exercise. अभी एक्चुअली एक्सरसाइज से होता क्या है, जो मैंने ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करा है वो ऑटोमेटिक हो जाता है। Exercise is most important thing you need to do. How many of you do exercise? कोई बोला मेरे को जरूरत नहीं पड़ती सर, आपको जरूरत नहीं है, ऐसे जरूरत के लिए नहीं होता। So you need to do exercise. Get a hobby of something different, like cycling, painting, other activities करना चाहिए जब भी आपको ऐसा लगता है। घर की साफ सफाई, it is a different actually जब भी आप घर की साफ सफाई करते हो तो you feel relaxed। कभी कभी ना जिनका काम रोज का उनकी बात नहीं करो, उनको तो उससे स्ट्रेस आता है, अरे इतनी साफ सफाई करके Those who are engaged in different works, आप जॉब करते हो, कुछ करते हो तो उसके बाद आप कभी स्ट्रेस से रिलीफ होना चाहते हो तो you can do such things, other things. Slow down, that is the most important thing. When I say slow down मतलब आपको कोई भी चीज करनी है that should be very slow within your capacity. जब आप अपनी कैपेसिटी के ऊपर काम करने लगते हो तो होता क्या है, you get stressful. You get stressful. अभी कोई भी मशीन है, उसका लाइफ अगर 1 साल है 2 साल है और उसको आप उसकी कैपेसिटी से ज्यादा यूज करोगे तो उसकी लाइफ कम हो जाएगी। सो स्लो डाउन, ओनली अलाउ, डोंट फोर्स। कोई भी चीज को फोर्स मत करो, सिर्फ अलाउ करो। लाफ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब भी स्ट्रेस आपको लगता है कि कुछ ऐसा लो फील हो रहा है, हंसो। सर हम स्ट्रेस में और आप बोल रहे हंसो, कैसे हंसोगे आप स्ट्रेस में हो कैसे हंसोगे? आप लो फील कर रहे हो तो हंसोगे कैसे? हविलदार, इज इट पॉसिबल? अरे बोलिए बोलिए, इज इट पॉसिबल व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड आउट या लो फील कर रहे हो या एंग्री हो तो आप हंसोगे कैसे? I'm asking you all whether you will be able to laugh or not. Yes or no? Yes or no? If you are feeling
पे आप हंस सकते हो क्या? हाँ, आप गुस्से में हो उस समय हंस सकते हो? आंसर इज नो, बट यू हैव टू लर्न इट. नहीं हंस सकते. अरे हाँ बोलेंगे, हाँ सर को हाँ बोल देंगे, लेकिन आप अपने अंदर से पूछो आप हंस सकते हो या नहीं हंस सकते? लो फील कर रहे हो, उससे हंसी कैसे आएगी भाई? सवाल नहीं उठता है. सो यू हैव टू लर्न इट. ऐसे हंसने का. अभी आप लोगों को हंस के बताना है, कुछ भी नहीं है अभी हंसने के लिए, फिर भी हंसना है. कैन यू लाफ? कैन यू लाफ? पक्का? 100%. चलो काउंट 1 2 3 यू लाफ. होएगा क्या? होएगा क्या? चलो आई एम काउंटिंग. काउंटडाउन शुरू होता है. 1 2 3 लाफ. अरे लाफ. लाफ. कम ऑन. अरे लाफ. कम ऑन. अरे देखना बहुत हंस रहा है. अरे लाफ. अरे हंसो हंसो. कम ऑन. लाफ लाफ. अरे हंसो ना. कम ऑन. फिर लाफ. Without reason you need to laugh. Come on. Yes, yes. अरे, come on. So. हंसो. No reason you should not laugh. बिना कोई reason के आपको laugh करना आना चाहिए. If you can do that, definitely you can avoid the stress. Learn to relax. That is yoga. Try some yoga, meditation, some quiet time. Actually, ये सब आपको सीखना पड़ेगा. योगा, meditation, सब कुछ. You can learn through books or you can go to gym or something like that. तो ये हो जाएगा. And deep breathing जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, deep breathing exercise, visualization exercise. So these all things, relaxation exercise you can do. Now try to change the way you approach the situation. Situation को handle करना सीखो. Remember, stress is normal. Use coping skills. Practice relaxation. So these all things you need to do. And basically, आपको कुछ जो भी मैंने बताया वो आप करोगे तो फायदा होगा. सुन के चले जाओगे कुछ नहीं होगा. So you need to practice. Say, we will practice. Come on, वापस एक बार. We will practice. वापस. जो कुछ चीजें देखो, एक ही चीज सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है. जब भी आप ये सब सिचुएशंस में होंगे तो आपको कैसे डील करना है वो इम्पोर्टेंट है. वो डील कीजिए. और डेफिनेटली आप ये सब कर पाओ, इसके लिए मैं प्रे करूंगा और आपके लिए सोचूंगा ताकि आप ये सब चीजें कर पाओ. एंड यू आर ऑलवेज अवॉइडिंग द स्ट्रेस. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू.